پہاڑ یا کسی اونچی ڈھلان سے گرنے والے دریائی پانی کو آبشار کہا جاتا ہے۔ قدرتی مناظر میں آبشار کو سب سے محصور کن اور خوبصورت نظارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار آبشاریں موجود ہیں، جن میں کچھ تو اتنی خوبصورت ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی آبشاروں میں ایک آبشار ایسی بھی ہے جسے دنیا کی مشہور ترین آبشار میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جو آپ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بر اعظم شمالی امریکہ میں برف پگھلنے سے وجود میں آنے والی یہ دل فریب آبشار نائگرا فالز کہلاتی ہے۔ دنیا کی اس مشہور ترین سیاحتی مقام کی تاریخ کیا ہے اور اسے کتنی بجلی پیدا کی جاتی ہے سالانہ، اور یہاں کتنے لوگ سیاحت کے غرض سے آتے ہیں۔ اس خطرناک آبشار کو رسے پر چل کر پار کرنے والا شخص کون تھا؟ انسان کو سحر زدہ کر دینے والی اس آبشار سے جڑی کئی کہانیاں اور فیکٹس آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ جو میرے پیچھے آبشار ہے اسے نائگرا فالز کہتے ہیں۔ یہ کینیڈا اور یو ایس کے بارڈرز پر ہے۔ نائگرا فالز امریکی ریاست نیو یارک اور کینیڈا کے جو پروونس ہے اونٹاریو کے سرحدی علاقے بہنے والے دریا نائگرا پر واقع ہے۔ دونوں ممالک کی سرحد اس دریا کے عین درمیان میں سے گزرتی ہے۔ دریائے نائگرا دراصل 4 جھیلوں کے پانی سے مل کر بنتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع 3 بڑی جھیلوں میشیگن، ہورون اور سپیریئر کا پانی جھیل ایری میں آ کر گرتا ہے۔ جھیل ایری سے جھیل اونٹاریو تک چلنے والے اس بہاؤ کو دریائے نائگرا کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 56 کلومیٹر بنتا ہے۔ جھیل ایری سے نکلنے کے بعد دریائے نائگرا 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور درمیان میں ایک جزیرہ سا بن جاتا ہے جسے گرینڈ آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ گرینڈ آئلینڈ سے آگے یہ دریا ایک بار پھر اکٹھا ہوتا ہے اور کچھ آگے جا کر ایک ڈھلانی سطح پر آبشار کی صورت میں نیچے گرتا ہے۔ اسی آبشار کو نائگرا فالز کہا جاتا ہے۔ نائگرا آبشار میں گرنے کے بعد اس دریا کا پانی اونٹاریو جھیل میں آتا ہے۔ یہاں سے یہ بحرۂ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں جا گرتا ہے۔ نائگرا آبشار دراصل 3 آبشاروں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے 2 آبشاریں امریکی حدود میں، جبکہ ایک بڑی آبشار کینیڈا کی حدود میں واقع ہے۔ امریکہ آبشار اور برائیڈل ویل آبشار ایک ساتھ ہیں، اور جو ہارس شو آبشار ہے ان 2 آبشاروں سے ذرا ہٹ کے ہے۔ اس ننھے سے جزیرے کی دوسری جانب کینیڈین حدود میں آتی ہے۔ ان آبشاروں میں ہارس شو سب سے دل آویز، خوبصورت اور بڑی آبشار ہے۔ اس آبشار کی بلندی 170 فٹ اور چوڑائی 2500 فٹ ہے، جبکہ امریکن آبشار کی بلندی 180 فٹ ہے اور چوڑائی 1100 فٹ ہے۔ تیسری نسبتاً چھوٹی آبشار جو برائیڈل ویل کہلاتی ہے، امریکن آبشار کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ دوستو، ان تینوں آبشاروں سے تقریباً فی سیکنڈ 3160 ٹن پانی گرتا ہے، اور جبکہ 1 منٹ میں تقریباً 2 لاکھ ٹن پانی 180 فٹ کی بلندی سے نیچے آتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 660 ٹن فی سیکنڈ پانی امریکن آبشار اور برائیڈل آبشار سے گرتا ہے، جبکہ 2500 ٹن فی سیکنڈ پانی ہارس شو فال سے گرتا ہے۔ سردیوں میں یہ مقدار نسبتاً نصف سے بھی کم ہو جاتی ہے اور آبشاریں تقریباً فریز ہو جاتی ہیں۔ یہ آبشار کئی مہینوں تک جمی رہتی ہیں اور اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں ٹورسٹ یہاں پر رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ آبشار گرتی ہے، اس مقام پر ایک چھوٹا سا جزیرہ بنتا ہے جسے گوٹ آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 500 سال پہلے اس جھیل ایری کے خارجی راستے پر ایک برفانی تودہ آ گیا، جس کی باعث دریائے نائگرا کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس برفانی تودے کے پگھلنے کے بعد آبشار 2 حصوں میں بٹ گئی اور درمیان میں جزیرہ سا بن گیا۔ وہ گوٹ آئلینڈ کے متعلق ایک اور کہانی دلچسپ طور پہ بتائی جاتی ہے کہ 1780 میں اس مقام پر ایک کسان کی بکری سردیوں کے باعث منجمد ہو گئی، جس کے باعث جزیرے کو گوٹ آئلینڈ کا نام دے دیا گیا۔
नायग्रा फॉल्स का ये इलाका अमेरिका और कनाडा की एक नेशनल पार्क का स्टेटस रखता है। अमेरिका में ये इलाका नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क, जबकि कनाडा में क्वीन विक्टोरिया पार्क कहलाता है। दोनों ममालिक का ये पार्क 400 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 140 एकड़ पानी के नीचे है। नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का शुमार अमेरिका के कदीम तरीन पार्क्स में होता है। ये नायग्रा फॉल ना सिर्फ सियाहती मकाम है, बल्कि इससे पन बिजली भी पैदा की जाती है। 19वीं सदी के आखिर में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली पैदा करने का प्लांट लगाया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज तक निजी करंट पहुँचाने की ताकत रखता था। ताहम कुछ अरसे बाद 1896 में मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला ने अपनी एसी करंट की टेक्निक से ये बिजली दूर दूर के इलाकों तक पहुँचाने का तजर्बा किया, जो कामयाब भी रहा। इसके बाद 1961 में यहाँ न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटीज ने पहला बाकायदा नायग्रा पावर प्लांट लगाया। इसके बाद एक अदद पावर प्लांट कनाडा के सूबे ओंटारियो में भी लगाया गया। नायग्रा फॉल्स से अमेरिका और कनाडा कुल मिलाकर 2.4 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो और न्यूयॉर्क स्टेट के कुछ इलाकों की बिजली इन्हीं प्लांट से मुहैया की जाती है। रात के वक्त दरियाए नायग्रा का बहाव आबशार की तरफ कम करके प्लांट की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसके ज़्यादा मिकदार पैदा होती है। ये बिजली रात के वक्त नायग्रा आबशार में पानी की मिकदार कम हो जाती है। नायग्रा फॉल्स का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन सियाहती मकामात में होता है। यहाँ सालाना करोड़ों अफराद सियाहत की गर्ज से आते हैं। एक सियाहती मकाम होने के बायस इस इलाके में दोनों ममालिक ने कई होटल्स शानदार बना रखे हैं, जिन होटल से अब आबशार का नज़ारा किया जा सके। ये बात काबिल जिक्र है कि शुरू में नायग्रा आबशार को सिर्फ हनीमून बनाने वाले जोड़े और मुख्तलिफ करतब दिखाने वाले लोग ही विजिट किया करते थे, और इसी वजह से इसे एक हनीमून पॉइंट कहा जाता था। नायग्रा आबशार का विजिट कनाडा और अमेरिका दोनों से किया जा सकता है। कनाडा की जानिब से किए जाने वाले सियाह तीनों आबशारों का नज़ारा बिल्कुल सामने से कर सकती हैं, जबकि अमेरिका की हदूद से इस आबशार का नज़ारा ज़्यादा करीब से किया जा सकता है और तीनों आबशारों को बिल्कुल आप ऊपर से देख सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके पास दोनों ममालिक का वीज़ा हो, वो दोनों तरफ से नायग्रा का नज़ारा एक ही विजिट में कर सकते हैं। इसके अलावा दरियाए नायग्रा पर नायग्रा आबशार के मकाम पर तामीर किया गया रेनबो ब्रिज इंतहाई मकबूल है। ये पुल 1941 में तामीर किया गया और आज तक अपनी हुस्न के बायस सियाहों को की तवज्जो का मरकज़ है। इसी पुल की मदद से सियाह आबशार के दोनों अतराफ का नज़ारा कर सकते हैं। कौसे शक्ल का ये पुल अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक मसरूफ तरीन गुज़रगाह समझा जाता है। रात के वक्त आबशार का नज़ारा मज़ीद सहरंगी हो जाता है। यहाँ कई रंगों की रोशनियाँ लगाई गई हैं, जिससे आबशार की खूबसूरती में इजाफा होता है। बजरिया कश्ती सियाह नायग्रा आबशार का करीब से नज़ारा भी कर सकते हैं, जबकि आबशार के पानी से बनने वाली हसीन कौसे कज़ा का फ़ज़ाई नज़ारा करवाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें भी होती हैं। हज़ारों साल पहले ये खिता बर्फ़ की मोटी तह से ढका हुआ था। ये बर्फ़ आज से 12,000 साल पहले आबो हवा और मौसमी बदलाव के बायस पिघलना शुरू हुई, तो पानी पहाड़ों से समंदर की तरफ बहना शुरू हुआ। नायग्रा आबशार उसी दौर में वजूद में आई थी। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक जब ये आबशार बनी तो ये आज के मौजूदा मकाम पर नहीं थी, बल्कि इस मकाम से तकरीबन 7 मील आगे झील ओंटारियो की जानिब जाकर गिरती थी। लेकिन ज़माने के उतार चढ़ाव और ज़मीन के कटाव के बायस सालाना तकरीबन 3 फीट पीछे हटती चली गई। फिर 1950 में दरियाए नायग्रा पर बंद बांधे गए, जिसके बायस इसके कटाव की रफ्तार में कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। कुछ माहिरीन के मुताबिक अगर कटाव इसी रफ्तार से होता रहा तो तकरीबन 50,000 साल में ये आबशार पीछे हटती हुई झील एरी के दहाने तक पहुंच जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दुनिया भर में नायग्रा को मुतारिफ करवाने का सहरा एक फ्रांसीसी पादरी के सर जाता है। उसने 1678 में इस इलाके के सफ़र के दौरान इसे डिस्कवर किया था। बताया जाता है कि 17वीं सदी से पहले इस आबशार
आबशार के मुतालिक सिर्फ मकामी लोगों को ही इल्म था। ये पादरी जब फ्रांस वापस गया तो इसने न्यू डिस्कवरी के नाम से एक किताब शाया की, जिसके बाद नायग्रा आबशार पूरी दुनिया में भर में मशहूर हो गई और लोग इसे देखने के लिए की गर्ज से आने लगे यहाँ पे। सन 1800 में सियाहत की गर्ज से यहाँ एक रेल सिस्टम शुरू किया गया था। शुरू में इस मकाम पर सिर्फ हनीमून मनाने वाले जोड़े या मुख्तलिफ करतब दिखाने वाले लोग सियाहत के गर्ज से आते थे, लेकिन इसकी खूबसूरती और हुस्न को देखते हुए जल्द ही इस आबशार को एक बाकायदा सियाहती मकाम में बदल दिया गया था। यहाँ की चंद दिलचस्प फैक्ट ये हैं, एक ये कि दिन के वक्त नायग्रा की गिरते पानी का शोर 2 किलोमीटर के फासले से, जबकि रात के वक्त 7 किलोमीटर के फासले तक से सुना जा सकता है। फिर नायग्रा फॉल्स को एक रस्से पर चलकर पार करने वाले शख्स एक मशहूर फ्रांसीसी बाजीगर चार्ल्स बाल्जन थे। चार्ल्स ने 1859 और 1860 में नायग्रा आबशार को कई बार रस्से पर चलकर पार किया। चार्ल्स ने अपने मैनेजर को कंधे पर उठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर और बैसाखियों के साथ भी ये कारनामा सर अंजाम दिया और रस्से पर चलते हुए। हॉल्स शू आबशार में पानी के बहाव के साथ ऊंचाई से गिरकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खातून एक 63 साल कैनेडियन स्कूल टीचर थी। उन्होंने 1901 में ड्रम में बैठकर ये खतरनाक कारनामा सर अंजाम दिया था। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है, नायग्रा फॉल्स पर सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह आते हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। मौसम सरमा में बर्फ़ जमने की बायस आबशार अब तकरीबन रुक जाती है। शुरू में लोगों को बर्फ़ पर चलने की इजाज़त थी, लेकिन 1912 के इस मौसम में 3 सयाहों के हादसाती मौत के बाद से इसे सर्दियों में बंद किया जाना शुरू कर दिया गया। 1848 में एक बर्फानी तोदे की वजह से नायग्रा आबशार में पानी का बहाव कई घंटे के लिए रुका रहा था। नायग्रा आबशार में परिंदों और पौधों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। पिछली 2 सदियों में यहाँ तकरीबन 600 अक़साम के नायाब पौधे और 14 अक़साम के परिंदे दरियाफ्त किए गए हैं। लफ्ज़ नायग्रा दरअसल एक मुकामी कदीमी अमरीकी ज़ुबान से निकला है, जिसका मतलब है शोर करता हुआ पानी। नायग्रा आबशार पर बहुत सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर अदाकारा मार्लन मैंड्रो की फिल्म नायग्रा और सुपरमैन 2 हिट हुई है। दुनिया का तकरीबन 20% ताज़ा पानी नायग्रा आबशार के इर्द गिर्द वाक़िए 5 झीलों से आता है, क्योंकि इसी आबशार में आकर गिरता है। पूरी दुनिया का तकरीबन 20% साफ पानी इसी तंग घाटी में से गुजरता है।